Hello dear students, how are you all? Welcome back. As you all know that we are doing chapter class 11th chapter number 2 subject chemistry, that is atomic structure. Yesterday we have learnt about the isotopes, isobars and isotones. In continuity of that chapter, today we are going to start next topic, that is electromagnetic radiations. So let us start this topic. Please, electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations. Okay, so ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? when any matter interact with light. In order to understand these interactions, it is necessary to know about the properties of electromagnetic radiations, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ properties ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਵ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਵ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਵੇਵ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੇਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੋਨ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਮੀਨ ਪੱਥਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਉਥੋਂ ਵੇਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ, ਔਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਡਿਆ ਕਿ ਵੇਵਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਏ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮੀਡੀਅਮ ਫॉर ਦੀ transmission of these waves। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ waves ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ which do not require any medium, which do not require any medium। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਨ। तो सन तो अर्थ तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, तो अर्थ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सन ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ सन ਤੋਂ ਅਰਥ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਆ ਔਰ ਇਟ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਨੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ। ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਰ ਮਤਲਬ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਜਨਰੇਟਿਡ ਬਾय oscillating a charged body in a magnetic field or of a magnet in
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਚਾਰਜ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली की हुई देखो नाम तो क्लियर आ कि इट शुड कंटेन दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर केड़े इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और ये दोनों केड़ी डायरेक्शन दे विच मूव करदे आ एक दूसरे दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच, ठीक है। केड़ी डायरेक्शन च परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच, ठीक। सो इन्हां नूं असीं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनस आखदे आ। तुहाडी स्क्रीन दे उपर इमेज भी फ्लैश हो रहा है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दा जिहदे विच तुसीं देख सकदे कि दोनों जिहड़े आ जिस डायरेक्शन दे विच प्रोपेगेट कर रहे आ और दोनों दी डायरेक्शन जिहड़ी आ एक दूसरे दे की आ परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर ते मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर जिहड़े दोनों की आ परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच है, ठीक है। तो हुण इहदे कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैगे ने वो असीं पढ़ांगे। करैक्टरिस्टिक्स की ने सब तो पहला करैक्टरिस्टिक की होएगा कि दीज कंसिस्ट ऑफ इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या फील्ड्स डायरेक्टली लिख लो विच ऑसिलेट or that oscillate in direction of perpendicular which oscillates in directions perpendicular to each other and also ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ and perpendicular to the direction in which wave is traveling, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ जो बहुत इंपॉर्टेंट आ कि जिन्नियां भी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक ਇਹਨੂੰ EM भी लिख सकते हैं EM waves travels with same velocity, सारियां same velocity नाल move करदियां, that is with कितनी velocity नाल with velocity of light दी स्पीड दे नाल move करदियां और light दी स्पीड बच्चे हुंदी कितनी है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि EM waves electromagnetic waves do not require any medium for propagation, ठीक है। So बच्चे these are the important characteristics of electromagnetic radiations, kindly note down it। इस तो बाद बच्चे हुण असीं की करांगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन कुछ टर्म्स हैगियां इहदे नाल एसोसिएटेड आ उन्हां नूं असीं पहला पढ़ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो पहला जिहड़ा करैक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है वो है वेव लेंथ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸੋਰਸ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ वाइब्रेटिंग सोर्स जिथों वाइब्रेशन जड़ियां है वो की है प्रोड्यूस हो रही है। सो इत्थे की है वाइब्रेटिंग सोर्स जिथों ये वाइब्रेशन जड़ियां वो प्रोड्यूस हो रही हैं और इहदा जिहड़ा ये टॉप मोस्ट हुंदी इहनू पोजीशन नूं असीं कहने आ क्रस्ट, ठीक है। और जिहड़ा नीचे वाली हुंदी आ इहनू लोअर पार्ट नूं इहनू असीं कहने आ ट्रफ, ये आखदे आ ट्रफ आखदे आ, ठीक है। और बच्चे जे वेवलेंथ की गल करिए तो वेवलेंथ मान लो ये दो क्रस्ट ने,
ठीक है एंड एडजेसेंट इन्हां दे विचकार दी ये जिहड़ी डिस्टेंस आ इनू असी वेवलेंथ आखते हैं ठीक है। जां फिर आ दो क्रस्ट लै लो ठीक है सॉरी ट्रफ लै लो और ट्रफ दे विचकार दी जिहड़ी डिस्टेंस आ कंजैक्यूटिव ट्रफ हैगियां उन्हां दे विचकार दी डिस्टेंस नू असी की कहंदे आ वेवलेंथ और इनू किहड़े सिंबल नाल रिप्रेजेंट करदे आ लैम्डा इनू कहंदे आ लैम्डा लैम्डा ठीक है लैम्डा दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। और जे असी एक वेव की गल करिए तो वेव बच्चे इत्थों जे स्टार्ट हुई आ तो इत्थे तुसी एक वेव नहीं बनना ये वेव की है थल्ले जाएगी और इत्थे जाके एक वेव बनी है दिस इज वन वेव इनू वेव नू असी वन वेव कहने हैं। और वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है कितनी लेंथ ट्रैवल की है उन्होंने असी ओदी वेव लेंथ कह देंगे ठीक है। सो वेव लेंथ इज द इसकी डेफिनेशन की होंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू nearest crusts or troughs ठीक है is called as a wavelength and it is denoted by a lambda symbol ठीक है। ये lambda symbol है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਆ और ਇਹਦੇ यूनिट ਹੁਣ यूनिट ਕੀ ਹੋਣੇ लेंथ ਦੇ यूनिट ठीक है यूनिट ऑफ वेवलेंथ लेंथ दे यूनिट पर स्मॉल यूनिट बच्चे यूज करते हैं और जनरली इट इज एक्सप्रेस इन दी स्मॉल यूनिट केड़े केड़े हो सकते सेंटीमीटर फिर उस तो बाद आंगस्ट्रॉम ठीक है आंगस्ट्रॉम ANGSTROM आंगस्ट्रॉम बेसिकली किहदे इक्वल हुंदा इहदी वैल्यू हुंदी है याद रखनी तुसी कि 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर ठीक है। आंगस्ट्रॉम लिख दे कितना ए दे ऊपर एक इस तरीके ना सर्कल लगा देने आ ठीक है तो उन्होंने टच करता होना चाहिए और इनू ऊपर बिल्कुल है अप साइड दे ऊपर ठीक है। तो ये जिहड़ी आ आंगस्ट्रॉम मीटर दे विच इन्नी वैल्यू है जे सेंटीमीटर च लिखनी है तो यही वैल्यू जिहड़ी आ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर रहनी क्योंकि एक मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर होंदे तो ओहदे नाल मल्टीप्लाई हो गए तो -10 + 2 जिहड़ा आ -8 रह जाना ठीक है। और होर इहदे यूनिट जिहड़े आ वो एक होर यूनिट हुंदे आ यूज कर सकदे होंदे नैनोमीटर ठीक है और नैनोमीटर नू nm लिखदे आ ते 1 नैनोमीटर जे आंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 ना तो नैनो याद रखियो ये हुंदे ने 10⁻⁻9 मीटर दे इक्वल 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर ठीक है। सो ये सी बच्चे वेवलेंथ की डेफिनेशन ते ओदे यूनिट और ओदे सिंबल किहदे नाल असीं डिनोट करते हैं। उस तो बाद नेक्स्ट जो है वो किया हुण फ्रीक्वेंसी तो इनू प्लीज इनू नोट कर लो। उस तो बाद असीं हुण नेक्स्ट जिहड़ा आ सैकेंड करैक्टरिस्टिक करना वो किया फ्रीक्वेंसी बेसिकली किया फ्रीक्वेंसी की हुंदी बच्चे फ्रीक्वेंसी होती कि एक सैकेंड दे विच ठीक है एक सैकेंड दे विच कितनियां वेव्स पास करदियां उन्होंने असीं की कह दिंदे फ्रीक्वेंसी ठीक है। एक सैकेंड दे विच कितनियां वेव्स जिहड़ियां वो पास करदियां उन्होंने की आखदे आ फ्रीक्वेंसी। तो दी डेफिनेशन लिखो डेफिनेशन की होगी इट इज डिफाइंड एज द number of waves which pass through a point in a second एक सैकेंड दे विच वो कितनियां वेव्स जिहड़ियां वो पास करदियां उन्होंने असीं की कह दिंदे आ फ्रीक्वेंसी कहंदे आ ठीक है। और इनू सिंबल किहड़े सिंबल नाल रिप्रेजेंट करदे आ इनू बच्चे आखदे ने इनू इस तरीके नाल बनाना देखो इदा इस तरीके नाल ठीक है। और इनू की कहंदे ने इनू आखदे ने बच्चे न्यू याद रखियो की आखदे ने न्यू ठीक है। सो दिस इज नोन एज न्यू। और होर इहदे यूनिट जिहड़े आ फ्रीक्वेंसी किस तरीके नाल असीं लिख सकदे इहदा मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग उहनूं असीं नंबर ऑफ साइकिल भी कह दिंदे आ नंबर ऑफ साइकल्स किन्ने साइकिल बनदे आ इन ए गिवन टाइम ठीक
टाइम कितना लेना सी पर सैकेंड दे विच वो टाइम ले लेना है। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब एक होर यूनिट बन गया ਇਹਦੇ इथों यूनिट की बन गए देखो यूनिट होंगे पर सैकेंड। ठीक है, सो यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की हो गया नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाय टाइम, टाइम के लिया किहड़े यूनिट सैकेंड विच, तो ये क्या आ गया पर सैकेंड, और इट इज नोन एज हर्ट्स HZ। HZ का मतलब होंदा हर्ट्स, हर्ट्स परसन है जिन फ्रीक्वेंसी बारे दस्या सी, तो वो नाम तो इनू HZ लिख देंगे, तो मतलब हर्ट्स जिहड़ा आ उहदे फ्रीक्वेंसी दे की आ यूनिट हैगे ने। सो मैनूं लगदा तुसीं लिख लिया होएगा, तो मैं इहनूं रब करां लगा। वीडियो नूं पॉज करके भी तुसीं लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके उस तो बाद लिख लो, फिर उन्होंने कंटिन्यू अगे फरदर जिहड़ी आ वीडियो चला लेनी है। ठीक है, तो नैक्सट बच्चे हैगा डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सैकेंड। 1 सैकेंड दे विच कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी। देखो जे तुसीं वेव लेंथ नूं मान लो, वेव लेंथ एक वेव नूं फ्रीक्वेंसी दे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ, फ्रीक्वेंसी दे नाल। ठीक है, वेवलेंथ नूं फ्रीक्वेंसी दे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ, तो इहदा मतलब की होया। देखो हुण ध्यान नाल समझियो, तुसीं पहलां इत्थे ये लिखो, देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सैकेंड। 1 सैकेंड टाइम थल्ले आ गया। ठीक है, तो टाइम नीचे और डिस्टेंस ट्रैवल मतलब डिस्टेंस किया इत्थे वेवलेंथ ला लो, डिस्टेंस किया वेवलेंथ। ठीक है, तो इहदा मतलब 1 सैकेंड किहदे इक्वल हुंदा हुण फ्रीक्वेंसी दे, 1 सैकेंड किहदे इक्वल हुंदा फ्रीक्वेंसी दे, पिछे करके आए। तो इहदा मतलब वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये किहदे इक्वल आ गई डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सैकेंड। 1 सैकेंड दे विच कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुंदी आ, उहनूं असीं की कह दिंदे आ, की कह सकते हैं कि वो किहदा मल्टीपल है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी दा। ठीक है, और ते डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सैकेंड ये की हुंदा विच, ये हुंदा वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, उन्होंने की कहते हैं वेलोसिटी। इहदा मतलब वेलोसिटी किहदे इक्वल आ गई, वेलोसिटी ऑफ वेव किहदे इक्वल आ गई है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इहदा मतलब वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। तो आ न्यू रिलेशन जिहड़ा है इथों डराइव हो गया, इनू नोट कर लो। तो इथों तुसीं जे वेलोसिटी नू c ਨਾਲ रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की गल करते हैं, तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट ना ट्रैवल करती है, तो c भी लिख सकते v की जगह। सो c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, ते न्यू जिहड़ा है वो किहदे इक्वल आ गया c अपॉन लैम्डा। हुण इथों एक बहुत इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी है वो सामने आनी है, वो हुण मैं तुहानूं दसनी है। तुसीं देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुणी तुहानूं दस के हटे कि इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इहदा मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट आ 3 × 10⁸ इट मीनस फ्रीक्वेंसी जिहड़ी आ वो वेवलेंथ दे ਜਾਂ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दे की हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, की हो गई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि किसी वेव की अगर वेवलेंथ ज्यादा तो वही फ्रीक्वेंसी घट होगी, जे वेवलेंथ घट आ तो वही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, इसनों भी असी समझ लेने। आओ किस तरह, मान लो इत्थे असी एक होर कोई वाइब्रेटिंग सोर्स लगाता। ठीक है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आ जिहदे नाल वाइब्रेशन जिहड़ियां वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और उहदे विच इस तरह वेव्स जिहड़ियां वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, हुण तुसीं टाइम पीरियड लै लो, मान लो आ टाइम पीरियड आ दोनों दे विच। ठीक है, आ टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड च देखो इत्थे ध्यान नाल देखियो इत्थे कितनियां वेव्स बन रही हैं। ठीक, इत्थों शुरू हुई वेव कित्थे तक आ, इत्थे तक वेव आ। ठीक है, इत्थे अप्रोक्सीमेटली की आ 2 वेव्स बन रही हैं। ठीक है, 2 ही बन रही हैं। ठीक, और इस केस दे विच एक वेव इत्थे तक, दूसरी, तीसरी, चौथी ते आ हाफ। ठीक है, मतलब इहदे विच अप्रोक्सीमेटली 4.5 वेव्स आ। ठीक है, ज्यादा वेव्स बन गई। ठीक, पर उन्होंने एक वेव की लेंथ जिहड़ी आ वो की आ
घट, ठीक है, ध्यान नाल समझो। और इहदे विच वेव दी लेंथ जिहड़ी आ वो ज़्यादा आ, वेव लेंथ ज़्यादा, ठीक है। अगर वेव लेंथ ज़्यादा पर नंबर ऑफ वेव्स कितनियां ने इत्थे 2, नंबर ऑफ वेव्स कितनियां ने 2, ठीक है। तो इहदा मतलब जिहदे विच वेव लेंथ ज़्यादा आ, ठीक है, उत्थे की होगी फ्रीक्वेंसी घट, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स वेव जिहड़ी फ्रीक्वेंसी की होंदी आ नंबर ऑफ वेव्स इन अ गिवन टाइम, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। टाइम असी सेम ले लिया, जिथे नंबर ऑफ वेव्स घट आ रही उत्थे वेव लेंथ की आ ज्यादा, ठीक। तो एक दूसरे दे की आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। सो आस करते हैं तुहानू ये समझ आया होगा टॉपिक। उस तो बाद विच नैक्सट हैगा वेव नंबर। नैक्सट टॉपिक की आ वेव नंबर। तो वेव नंबर की डेफिनेशन की होंदी आ, वेव नंबर बेसिकली की होंदा रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। जो सिंपल लैंग्वेज गल करिए तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। मतलब इनू रिप्रेजेंट किदा करना इस तरीके ना, ठीक है। इस तरह इनू न्यू बार कहंदे, इनू असीं की कहांगे न्यू बार। न्यू दे ऊपर बार जिहड़ा आ वो लगा देना। तो ਇਹਦਾ मतलब न्यू किहदे इक्वल आ गया 1/λ, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। की लिखोगे तुसी डेफिनेशन की लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ते वेव नंबर जिहड़ा आ ਇਹਦੇ यूनिट की आने ने, यूनिट ऑफ वेव नंबर। वेव लेंथ के यूनिट की होंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नीचे आ तो ये बन गया सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। टर्म किया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होंदा, ये होंदी बच्चे कि देखो आ वेव आ, ये वेव हाईएस्ट डिस्टेंस ते किथे जा रही, हाईएस्ट डिस्टेंस तक, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ, सिंपल आपां गल कर लेने, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ ए वेव, ऑफ ए वेव उन्होंने की कहते हैं एम्पलीट्यूड आखते हैं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड ਨੂੰ रिप्रेजेंट अगेन स्मॉल ए ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ कैपिटल ए ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर ਲੈਂਦੇ ਆ। एम्पलीट्यूड ਦਾ सिग्निफिकेंस ਕੀ ਆ, इट determine the intensity of a wave। वेव की कितनी इंटेंसिटी आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ठीक है। या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, सिंपली ਅਸੀਂ इदा लिख सकते हैं रेडिएशंस, ओके। और इंटेंसिटी ਇਹਦਾ मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। और जिथे बच्चे आ चीज आ इनू कहते नॉड, इस जगह नू की कहते आ नॉड, आ वाली खाली जगह इत्थे एम्पलीट्यूड जिथे 0 आ उन्होंने असीं नॉड कह दिंदे हैं। तो नॉड ते एम्पलीट्यूड जिहड़ा आ 0 हुंदा, इट मीनस उस नू की आखदे आ नॉड उत्थे, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऑन दी एक्सिस, ठीक। उस तो बाद नैक्सट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की है, टाइम पीरियड की होएगा कि द टाइम रिक्वायर्ड, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। so time period is time taken by wave to complete one cycle or one vibration, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ t is equal to 1 by nu, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ 1 by nu। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ t is equal to 1 by nu, मतलब 1 by फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की होंदी है, फ्रीक्वेंसी इज साइकिल अपॉन टाइम। तो टाइम इधर चला गया, फ्रीक्वेंसी इधर आ गई, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ t is equal to 1 by nu। सो टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने ਲਈ कितना टाइम लै रहा,
ठीक है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ these are the important terms regarding this. The topic is electromagnetic spectrum और ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ देयर ਵੇਵਲੈਂਥ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਇਜ਼ ਦਾ arrangement of various types of electromagnetic radiations in order of their increasing or decreasing wavelength और frequency, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੇਵਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, और लास्ट विच है कॉस्मिक रेज, ठीक है। सो ये ऑर्डर किया, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इधर नो जिदा जिदा असीं जा रहे हैं वेवलेंथ जिहड़ी आ रेडिएशंस दी वो किया डिक्रीज कर दिया, ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीजिंग और यू कैन से फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। आओ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ ਰੇਜ਼, ਠੀਕ। ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ठीक है। फिर उस तो बाद IR, उस तो बाद माइक्रोवेव्स, ते लास्ट विच असीं लिखा है रेडियो वेव्स। मतलब इहदा ऑर्डर जिहड़ा आ वो रिवर्स करता, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ आ, इधर नूं की आ जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। मतलब इस साइड नूं लैम्डा जिहड़ा आ वो की आ इंक्रीज करदा, मीनस वेवलेंथ जिहड़ी आ हुण इंक्रीजिंग ऑर्डर दे विच आ गई, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते। तो सब तो पहला बच्चे ये है कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक रेज का जिहड़ा सोर्स है बेसिकली ये कित्थे हुंदियां ने, दीज आर प्रेजेंट इन दी आउटर स्पेस। और क्योंकि इन्हां दी वेवलेंथ जिहड़ी आ वो सब तो घट होनी आ, ठीक है। अगर वेवलेंथ घट आ बच्चे, जेदी वेवलेंथ घट होएगी एक एनर्जी का फार्मूला हुंदा एच न्यू, ठीक है। फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट विच आएगा है, अगे जाके असीं पढ़ना है एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि असी हुणे पिछे करके आए हैं कि सी किहदे इक्वल होंदी है लैम्डा इंटू वी न्यू। तो इहदे विच इहदा मतलब न्यू किहदे इक्वल आ गया सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये फार्मूला बनदा जेदी वेवलेंथ जिहड़ी आ वो घट होएगी ओदी फ्रीक्वेंसी की होनी है ज़्यादा, ते ओदी एनर्जी भी की होनी है ज़्यादा, ठीक है। ओदी एनर्जी की होएगी ज़्यादा। इहदा मतलब की आ कॉस्मिक रेज दी
ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐंसी ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਟਰਸ ਦੀ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, these are produced when there is a radioactive disintegration। ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਐਟਮਸ ਜਦੋਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਤੇ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸ ਰੇਜ਼। ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਨਰਲੀ ਮੈਟਲਸ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼। ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਰੀ ਲੈਂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਨੋਨ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਹੌਟ ਵੈਕਿਊਮ ਸਪਾਰਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਟ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਆਫ ਟੰਗਸਟਨ ਬਲਬ, ਜੋ ਬਲਬ ਹੈ ਯੈਲੋ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ is sensitive to these radiations। ठीक है, our eye is sensitive to these radiations। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ radiations ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਵਿਬਗਿਓਰ, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ VIBGYOR। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਬਗਿਓਰ। V ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ, I ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਗੋ, B ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬਲੂ, G ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਰੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਡ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵਾਇਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ, ਔਰ ਵਾਇਲਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਵੀ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ। ਅਲਟਰਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੈਨ ਵਿਬਗਿਓਰ, तो इस करके ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰੈੱਡ, तो ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ। IR ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਮਤਲਬ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਟੂ ਰੈੱਡ, तो इस करके ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੌਟ ਬਾਡੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਟ ਇਨਕੰਡੈਂਸਿਵ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ, ਔਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹਰਟਜ਼ੀਅਨ ਵੇਵਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, HERTZ
IAN, ठीक है, हर्ट्जियन वेव्स। और बेसिकली ये कौन प्रोड्यूस करता है? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पार्क डिस्चार्ज, ठीक है। और ये वेव्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ these we use in a telephone circuits, ठीक है, these radiations we use in the telephone circuits, okay। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ? ਜਦੋਂ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਪਾਰਕ ਗੈਪ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਂਡ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟਸ, ठीक है। और बच्चे जो इंपॉर्टेंट गल है इत्थे वो तुसी ये याद रखना कि विवग्योर मतलब विजिबल रेडिएशन दी वेवलेंथ रीजन दी रेंज की हुंदी आ, वो हुंदी 380 ਜਾਂ 3800 ਆਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਅਸੀਂ ਆਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ 3800 ਆਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 760 आंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। अगर नैनोमीटर च लिखना तो इतने 380 नैनोमीटर और एक कितना आना 360 नैनोमीटर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाउ वी अरेंज them in increasing order of their wavelength और decreasing order of their frequencies, ठीक है। और इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਨੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫॉर ट्रैवल, ठीक है। तो ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੋਹਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਹਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।